Greetings, grace and peace be upon you, dear family. Welcome to Hosting the Ark, day 23rd. Today we will study from hidden glory to open access. The Ark of the Covenant reveals God's holiness and justice, while Jesus Christ reveals God's grace and opens the way into His presence. प्रिय परिवार, आप सभी पर अनुग्रह और शांति बनी रहे। होस्टिंग द आर्क दिन 23 में आपका स्वागत है। आज हम छिपी हुई महिमा से खुले प्रवेश तक इस विषय पर अध्ययन करेंगे। वाचा का संदूक परमेश्वर की पवित्रता और न्याय को प्रकट करता है, जबकि प्रभु यीशु मसीह उसके अनुग्रह को प्रकट करते हैं और हमें उसकी उपस्थिति में प्रवेश का मार्ग देते हैं। Throughout the Old Testament, the Ark of the Covenant represented the holy presence of God. It reminded Israel that God is holy, righteous and just, and because of sin, no one could actually approach His presence. पुराने नियम में वाचा का संदूक परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति का प्रतीक था। ये इस्राएल को स्मरण दिलाता था कि परमेश्वर पवित्र, धर्मी और न्याय है। पाप के कारण कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर सकता था। In the book of Exodus chapter 19:12, God commanded Moses to place boundaries around Mount Sinai. Anyone who touched the mountain would die. This showed that a holy God cannot be approached carelessly by sinful humanity. निर्गमन 19:12 में परमेश्वर ने मूसा को सीनै पर्वत की चारों ओर सीमा बांधने की आज्ञा दी। जो कोई उस पर्वत को छुएगा वो मार डाला जाएगा। इससे ये स्पष्ट हुआ कि पवित्र परमेश्वर के निकट लापरवाही से नहीं आया जा सकता। The ark was kept inside the most holy place, hidden behind the veil. Only the high priest could enter once a year, and only with the blood of sacrifice. वाचा का संदूक परम पवित्र स्थान में पर्दे के पीछे रखा जाता था। केवल महायाजक ही वर्ष में एक बार बलिदान के लहू के साथ उसके सामने जा सकता था। So this did not mean that God wanted to stay away from His people forever. The veil revealed that sin had created a separation between God and humanity. इसका अर्थ ये नहीं था कि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों से दूर रहना चाहता था। पर्दा ये दर्शाता था कि पाप ने मनुष्य और परमेश्वर के बीच दूरी उत्पन्न कर दी है। When Israel came to Jericho, God's judgment came upon the city because of its persistent wickedness. Yet, in the middle of the judgment, Rahab and her family were saved because they believed. जब इस्राएल यरीहो पहुंचा, तब उस नगर पर उसकी निरंतर दुष्टता के कारण परमेश्वर का न्याय आया। लेकिन उसी न्याय के बीच राहाब और उसका परिवार विश्वास के कारण बचा लिया गया। ये दिखाता है कि परमेश्वर न्याय भी है और दयालु भी। Everything changed through Jesus Christ at the cross. The veil of the temple was torn from top to bottom. God Himself opened the way into His presence. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ बदल गया। क्रूस पर मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। स्वयं परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में प्रवेश का मार्ग खोल दिया। Hebrews chapter 10 tells us that through the blood of Jesus, we now have boldness to enter into the most holy place. Was no longer stand at the distance. We can come near to God because of Christ. इब्रानियों अध्याय 10 में हमें बताता है कि प्रभु यीशु के लहू के द्वारा अब हमें परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस मिला है। अब हमें दूर खड़े रहने की आवश्यकता नहीं। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर के निकट आ सकते हैं। The cross perfectly reveals both God's justice and God's grace. God did not ignore sin, but He placed our judgment upon His own Son so that we could receive eternal life. क्रूस पर परमेश्वर का न्याय और उसका अनुग्रह दोनों प्रकट हुए। परमेश्वर ने पाप को अनदेखा नहीं किया, बल्कि हमारे दंड को अपने पुत्र पर रख दिया ताकि हमें अनंत जीवन मिल सके। Today, as we continue hosting the Ark, let us never take God's presence for granted. The privilege of entering His presence was purchased by the precious blood of Jesus Christ. आइए आज हम होस्टिंग द आर्क की इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए परमेश्वर की उपस्थिति को कभी साधारण ना समझे। उसकी उपस्थिति में आने का ये अधिकार हमें प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा मिला है। Let us live holy lives, honor His presence, and remain close to Christ every day, because through Him the hidden glory has become an open invitation. आइए हम पवित्र जीवन जिए, उसकी उपस्थिति का आदर करें और प्रतिदिन मसीह के निकट बने रहें, क्योंकि उन्हीं के द्वारा जो महिमा कभी पर्दे के पीछे हुई थी, वो आज हम सब के लिए खुला निमंत्रण बन गई है।
Thank you for joining with us today. Continue to hosting the Ark and may you walk daily in the presence of Christ Jesus. आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। होस्टिंग दी आर्क की इस यात्रा में बने रहिए और प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में चलते रहिए। Grace and peace be upon you.